Hello students, my name is Vishwajit. I'll be teaching you the circulatory system. So welcome to Career Academy. तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अराउंड डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स काम करते हैं, राइट। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, lymphatic system, nervous system. Likewise, we'll be discussing about circulatory system. Okay. So, circulatory system in the sense that means circulation of fluids. Circulations of fluids, right? So, specifically, if we will talk in our body, different types of fluids are present. Right. So in that fluid, and another topic I would like to add over here, that connective tissue. Okay, we all know that we have different types of connective tissue in our body, right? Bone is one of them, blood is one of them, matrix is one of them, cartilage is one of them. Okay, but in today's topic we are going to cover the description of fluid which is related to blood. That means the circulatory system, it is clearly mentioned over here, which helps us for the transportation, for the, like, see, specifically if we talk transportation, it is transporting various substances in our body, like it is transporting few gases like respiratory gases, oxygen and carbon dioxide from the body to the outside atmosphere and from the atmosphere to the body. It also transports few nutrients in our body. Whatever nutrients we are intaking at the time of digestive system, that nutrients is being transported to our body, through our body, by help of circulatory system only. It also transports few hormones which are secreted from the glands in the body by the help of circulatory system. Additionally, it also transports waste material which are produced in the cell to defecate from the body, and that means it also helps us to transport the waste material which are formed in our body. तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरी तरह से समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है और उसके फंक्शंस क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है. Okay, so let's discuss one by one. Okay, so let's discuss the features of circulatory system. कि इसके फीचर्स क्या है. जैसे आप सबको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी फीचर्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, इसमें फ्लूइड्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, पहला फीचर, इंपोर्टेंट फीचर ये है कि उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होती है, जो फ्लूइड आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि वेस्ट मटेरियल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन्स हो गया या फिर न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सारे सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके थ्रू होती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड एंड व्हिच इज ए फ्लूइड. दिस इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सेकंड, it is a system of blood vessels. We know in our body there are different types of blood vessels are present. Okay, they are artery, they are veins, they are capillaries. So these types of blood vessels which are present in our body, which helps us to transport various substances in our body. Third, a heart is also a part of circulatory system which helps us to pump the blood throughout the body. That means it only a pumping organ of human body, we know it is heart. Okay, moving further,
we'll be discussing about the types of circulatory system. ओके, तो बहुत सिंपल है चीज. ये टाइप्स जैसे क्या होता है, कभी कभी जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था डिफरेंट डिफरेंट क्लास पे, तो उनको क्लासिफिकेशन भी सर्कुलेटरी सिस्टम को मद्देनजर रख के भी किया गया था. लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि ये किसी की ऑर्गन या टोटल एंटायर बॉडी है और उनकी बॉडी में अगर कोई स्पेसिफिक वेसल्स अवेलेबल नहीं है, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन उनकी केस पे पाया जाएगा. That means the first type is your open circulatory system where the fluid is circulated through open chambers. That means the organs are directly connected to the blood. There is no presence of any blood vessels. Blood vessels are absent in case of open circulatory system, which are seen in case of arthropods and molluscas as well. Okay. Now, if we talk about the another type of circulatory system, which is known as closed circulatory system, that means simply you can say the presence of blood vessels which helps to carry the to separate the different types of blood. That means आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो blood है बॉडी में, blood is of two type. Basically एक होती है जो ऑक्सीजन कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, दैट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द प्योर ब्लड, ओके, व्हिच इज कैरी फॉरवर्ड बाय आर्टरी, एंड योर कार्बन डाइऑक्साइड इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच कैरीज एंड व्हिच कैरीड बाय veins. Okay, so two types of circulatory system we are observing, that open circulatory system and closed circulatory system. Closed circulatory system you can find in case of mammals, okay, and few amphibians also. Amphibians also shows closed circulatory system. Okay, so on the basis of circulatory system we have divided into two parts. One is open circulatory system and closed circulatory system. Okay, समझ में आ गया? So moving further, we'll be discussing about the open circulatory system in a bit further. So as I said, arthropods, arthropod in the sense बेटा क्या होता है, arthropods होते हैं jointed legs, जिनकी बॉडी में legs jointed होते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो उसकी leg है यहाँ पे jointed है, उसकी fixed नहीं है, तो jointed legs specifically you can say jointed leg जिनके पास होंगे उनको हम बोलेंगे arthropod. the largest animal group in the world. These are the first largest group. And आपको ये भी बताना चाहिए additionally second largest group कौन है? Second largest group will be your mollusca. The mollusca group is coming under the second largest group which are found in the world. Okay, as I mentioned earlier, arthropods and mollusca are open circulatory system. So in that case, the hemolymph, that means the blood which is present in the cavity. Cavity क्या होता है? एक hollow space होता है. क्या होता है? एक hollow space होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक hollow space यहाँ पे टोटल अवेलेबल है, जिसको हम क्या नाम दिया है? हेमोकॉइल. तो हेमोकॉइल एक कैविटी है, ठीक है, जहां पे ब्लड स्टोर होता है, और उनके पास क्या होता है? एक हार्ट नहीं होता, उनके पास एक सीरीज ऑफ हार्ट होता है. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट्स आर प्रेजेंट. So the circulation is conducted by a series of heart and the blood is stored in hemocoil. Okay, so specifically this is about open circulatory system which is seen in case of arthropods and mollusca. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अभी हम बात करने वाले हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होंगे? वेसल्स होंगे. याद रखना एक ही चीज कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम ऐसा आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जिनकी केस पे क्या प्रेजेंट होने चाहिए? वेसल्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेंट्रल वेसल्स है, स्मॉलर वेसल्स है, तो डोर्सल वेसल्स है. तो वेसल्स अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली वी कैन से दैट द ऑर्गन सिस्टम द ऑर्गेनिज्म इज कमिंग अंडर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो इनके केस में कौन-कौन आएंगे? एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो वर्टिब्रेट्स आएंगे जिनकी बैकबोन होती है वर्टिब्रेट्स, एनिलिड्स भी आएंगे, वर्म्स भी आएंगे, एंड कुछ मोलस्का हो सकते हैं एक्सेप्शनल केस पे, वो आएंगे आपकी वर्टिब्रेट एंड
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी मेंशन कि ब्लड जो है मूव करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू एंड बाय द हेल्प ऑफ हार्ट, बिकॉज पंपिंग की फंक्शंस होगी वो आपको कौन मदद करेगा इसके लिए, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी एंड वेसल के साथ ये आपकी कंप्लीट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कंबाइन करेंगे, जो कि देखा जाता है किसके केस पे, वर्टिब्रेट्स, एनालिड्स एंड वर्म्स के केस पे, कीड़ों मकोड़ों के केस पे, ठीक है। तो मूविंग फर्दर we'll be discussing about, there is a question for you guys, that the question is why does the open circulatory system limit body size। जो बात करते हैं कि अगर किसी की ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है तो उनकी बॉडी की साइज जो होती है कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है। दिस इज द लॉजिक क्या है इसके पीछे, देखो स्पेसिफिकली आंसर दिया हुआ है कि हार्ट आर टू स्मॉल फॉर ग्रोथ, टू लिटिल ब्लड टू सपोर्ट ए लार्जर एनिमल, लेस एफिशिएंट इन मूविंग ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज एंड हेमोग्लोबिन। इसमें से आप देख लो ये पे कोई भी आंसर सही नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो ईच एंड एवरी सेल के पास हम ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाएंगे इजीली, जिसकी वजह से जो एनर्जी काउंट होगा वो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज आज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वी आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, वी आर multicellular and we are highly complex organism. That means the daily activity of our body or organisms is highly improved and they need maximum or more number of energy to perform the daily activity. So if we are coming under open circulatory system, that means by diffusion we are exchanging the energy or all the substance through diffusion, it is not possible to provide the exact amount of requirement of energy to our body. That's why if question is asking why does an open circulatory system limit body size, body size उसकी क्यों लिमिट हो जाती है, बिकॉज वो कम एफिशिएंट होता है ऑक्सीजन को मूव कराने में अपने बॉडी में। अगर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाता, एंड आपको पता है ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है टू प्रोवाइड एनर्जी। तो ये है उसके आंसर, ठीक है। चलो तो अभी हम बात करने वाले हैं एक सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाई डिड होम्योथर्मी इन द सेंस वार्म ब्लडेड एनिमल। आपको ये चीज भी पता होना चाहिए, जब क्लासिफिकेशन किया गया था, एरिस्टोटल ने भी क्लासिफिकेशन किया था, तो उन्होंने एनिमल्स को दो तरह का क्लासिफाई में पार्टिसिपेट करवाया था, एक था कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक था आपका वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो लोग होते हैं बेटा, जो कोल्ड ब्लडेड मतलब जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, याद रखना, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट रेगुलेट, यू कैन सी दैट they cannot regulate the body temperature as per the external surrounding, तो अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, वो लोग होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बताया जाए तो फ्रॉग इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, okay, and here the question is asking why did homeothermy in the sense warm bloodedness only develops in organism with a closed circulatory system, just because the same answer will be here, because the blood is flowing through vessels. This is your logic कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स नहीं होते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स होते हैं। दैट्स व्हाई होम्योथर्मी आपकी किस में देखा जाता है, आपकी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। ओके, देन वी विल बी मूविंग फर्दर टुवर्ड्स ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है। अगर आपको नॉर्मल में पूछूं कि ब्लड है क्या, पहला चीज तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ब्लड की कलर रेड है, ठीक है, ब्लड की कलर रेड है। और एक चीज आती है कि ब्लड थोड़ा सा विस्कस है, थोड़ा मतलब पानी जैसे इतना लिक्विडिटी नहीं है, उसमें थोड़ा विस्कोसिटी ज्यादा है। और आप ये बोल सकते हो कि सर रेड है, रेड इन कलर है, विस्कस है, ठीक है। उसकी पीएच की अगर मैं बात करूं व्हिच इज कमिंग अंडर 7.3 to 7.4 समथिंग, व्हिच इज अल्कालाइन इन नेचर। ब्लड इज अल्कालाइन इन नेचर, दैट मींस स्लाइटली अल्कालाइन, स्लाइटली बेस्ड, okay।
So we'll be discussing about blood. So let's discuss blood. Okay. As we know that body fluid are of three different types. First one is your blood, okay, tissue and lymph. These three types of body fluids are present in our body. Okay. From that, blood is red in color, which is viscous in nature. If we talk about tissue, tissue is इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप्स हैं, ठीक है, वो आपकी इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है. एंड आप ये भी बोल सकते हो कि सेल्स अगर कंबाइन कर जाएंगे तो आपके टिश्यू फॉर्मेशन होती है. ठीक है, टिश्यू सिस्टम उसके बाद फॉर्मेशन होता है, आपको ये पता है. तो इसमें क्या होती है, वाटर, गैस, ये सब चीज स्टोर होके होता है. कहां पे, आपकी इंटरसेलुलर स्पेस पे. एंड लास्ट लिम्फ. लिम्फ जो होती है आपकी लिम्फेटिक सेल्स या लिम्फेटिक ऑर्गन्स में पाया जाता है. लिम्फेटिक ऑर्गन्स इन द सेल्स जो इम्यूनिटी रिलेटेड होते हैं, जैसे कि थाइमस ग्लैंड हो गया, स्प्लीन हो गया, जो कि रिलेटेड टू क्या होता है बेटा, इम्यून सिस्टम में रिलेटेड होते हैं. तो हम अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्लड. क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू बेटा. ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे बॉडी में देखो 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज आल्सो a connective tissue, cartilage is also a connective tissue, and matrix is also a connective tissue. But specifically we'll be discussing about blood. Okay, so let's discuss. Okay, so as I mentioned, blood is made up of hematopoietic tissue. Blood is specifically made of a specialized tissue which is known as hematopoietic tissue. Clear? And the formation of blood is known as, the process by which the blood is formed in our body is called hematopoiesis. ठीक है, तो हेमाटोपोइटिक से आपको याद रखने के लिए इजी होगा. हेमाटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. ओके, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आपके ब्लड वेसल्स थे. ठीक है, तो वेसल्स ही हो गया आपको बेटा बॉडी में. तो वेसल्स क्या हो गए, वेसल्स हो गया आपकी एक आर्टरी, एक वेन और एक कैपिलरी. आर्टरी क्या कैरी करता था, मैंने आपको पहले से बता के रखा था कि आर्टरी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एंड कैपिलरी समहाउ आपकी द इंटरपोजिशन बिटवीन आर्टरी एंड वेन. दैट मींस ये जो देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपकी आर्टरी कैरी हुआ और ये रिटर्न में आपकी वेन आया. ठीक है, ये हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन. तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एक्सचेंज होंगे, ठीक है, तो जो डिफ्यूजन वगैरह यहाँ पे होगा, तो दैट विल बी टेकन केयर बाय द कैपिलरीज. ठीक है, सो ओके. एंड कलर की बात किया जाए तो आर्टरी की कलर स्पेसिफिकली ब्राइट रेड होती है. ठीक है, रेड क्यों होती है आपको पता है अच्छे से. रेड बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है जो आरबीसी आपकी रेड ब्लड सेल्स के काउंट बढ़ाता है. एंड अगर वेन की बात करें तो वेन की कलर आपकी क्या होगी, डार्क रेड इन कलर होगा अगर हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करें. एंड पीएच ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड, ये क्या होगा बेटा, ये अल्कालाइन होगा. ब्लड आपकी थोड़ा अल्कालाइन, अल्कालाइन से थोड़ा जो सॉल्युबल बेस होता है उसको हम अल्कालाइन बोलते हैं. तो पीएच जो होगा ब्लड का, दैट विल मूव मतलब वेरी फ्रॉम 7.3 टू 7.4 एंड व्हिच इज अल्कालाइन इन नेचर. एंड वेट की अगर बात किया जाए, जिसकी बॉडी में वेट जितना होगा उसकी ऑन एन एवरेज में बात करो तो 8% या 8 to 10% के आसपास होगा आपकी एंटायर बॉडी वेट की. 8 to 10% आपकी बॉडी में ब्लड होगा. ठीक है, ओके. चलो, नाउ we'll be discussing about various functions which are carried by the blood. This is also I have already mentioned. Let's discuss once again. The first function which is carried by the blood is transportation. The transportation of oxygen, transportation of carbon dioxide, transportation of nutrients, transportation of waste products, and transportation of hormones which are carried forward by the blood is the primary function of blood. Second, the body temperature regulation. This is also contributed by blood. Okay.
Third, the water balance. That means how much amount of water will be retained in our body, how much amount of water is required to our body. That thing or that part is also taken care by blood only. That means the water balance is also a function of blood. pH control is also another function of blood. That means the pH of our body, when it needs to be alkaline, when it needs to be changed from alkaline to acidic, that part is also taken care by blood. Then it also acts as a reservoir of protein. जो प्रोटीन हमारे बॉडी में रिजर्व होकर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है, दैट इज ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड बाय ब्लड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it also protect us from various toxin in the sense various poisonous substance, toxic substance, which helps to remove in the form of waste. By removing the toxin from our body, it helps us to protect our body against toxin. So these are the functions of blood. Okay, transportation, body temperature regulation, water balance, pH control, reservoir of protein, and protection from toxin. Okay, now let's see, after function we'll be looking at the composition कि blood बना कैसा है, क्या क्या चीज लेके बना हुआ है. ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए तो कंपोजिशन, तो ये दो चीज से बना हुआ है, एक प्लाज्मा और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर एलिमेंट भी कहा जाता है इसको. तो ये प्लाज्मा या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट को लेके बना हुआ है. प्लाज्मा की कलर जो होगा वो स्ट्रॉ की कलर होगी, येलोइश कलर आएगी. तो धान की खेत में जो आपको मिलती है तो वो टाइप की स्ट्रॉ कलर होगी, येलोइश कलर होगा उसका प्लाज्मा का कलर, जो कि हाईली प्रोटीनियस भी है, आप बोल सकते हो. उसमें वाटर के कंटेंट भी ज्यादा होता है. एंटायर ब्लड की बात किया जाए तो उसकी 55 से 60% कंपोजिशन आपकी प्लाज्मा की होगी. एंड प्लाज्मा के 90 to 90% आपकी समहाउ आएगी उसमें वाटर कंपोजिशन, एंड 6 to 8% which will be protein. एंड अगर बाकी 1% आ रहा है आप सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो. फ्यू ऑफ सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड. ओके, अभी मैंने जैसे बात किया कि प्रोटीन होगी, तो कौन सी प्रोटीन होगा वो थोड़ा देख लेते हैं. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि प्लाज्मा जो होती है बॉडी के एंटायर अराउंड 55 से 60% कैरी करता है, जिसकी कलर आपकी क्या होता है बेटा, येलोइश कलर होती है, स्ट्रॉ कलर येलोइश कलर होती है. जिसमें प्लाज्मा की बात करा जाए तो उसमें 90 to 92% समहाउ वाटर कंपोनेंट होती है, एंड प्रोटीन कंपोनेंट समहाउ 6 to 8% होती है, एंड 1% की आपकी सॉल्ट अवेलेबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप बोल सकते हो उसको. ठीक है, जब प्रोटीन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रोटीन में अगर देखा जाए तो प्रोटीन में आपकी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होगा जो आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करेगा. जैसे कभी आपके हाथ या फिर कहीं पोजीशन आपकी स्किन में कट हो जाती है तो वहां पे जो ब्लड क्लट फॉर्मेशन होती है, दैट part is being taken care by the protein which is known as fibrinogen या fibrin भी बोल सकते हो उसको. ठीक है, globulin is also another protein which helps us to provide the immunity, okay, which is related to lymphatic system as well. Okay, and lastly albumin एक water soluble प्रोटीन है. अगर आप सॉल्युबिलिटी पूल पढ़े होंगे बायोमोलिक्यूल्स में, डेफिनेटली यू हैव लर्नड दैट वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन की बात में अगर बात किया जाए, बिकॉज़ ड्यू टू पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी सब्सटेंस इट कम्स, तो एल्ब्यूमिन इज वाटर सॉल्युबल एंड इसीलिए वो ऑस्मोसिस कराने में हेल्प करता है. दैट मींस टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन व्हिच हेल्प्स अस टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर. Okay, so this is the composition of plasma. And secondly, we will be discussing about the composition of formed element, which is classified into three categories: is RBC, red blood cells; WBC, white blood cells; and platelets. Okay, and further, WBC is also divided into granulocytes and agranulocytes. These are the due to the presence of granules and lobes. Okay, in case of granules there are lobes present and few granules are also present. In agranulocyte there is no lobes and no granules are present, that's why they are named as such. And further, granulocytes also divided into neutrophils, eosinophils and basophils, and agranulocytes is divided into lymphocytes and monocytes. We'll be discussing them also. Okay, so let's discuss briefly about various component of blood. First of all, we'll be discussing about RBC. As I said,
red blood cell is otherwise known as erythrocyte. And here the scientific meaning of erythros will be red. Okay, erythros in the sense red and cyte in the sense cell. Combinedly called erythrocyte, which is available most numerously in the human body. And specific count if we'll talk, it will coming around 4.5 million number of RBC, which is available in per cubic millimeter of blood. If we take 1 cubic millimeter of blood, we will find 4.5 million number of RBC in that specific region. स्ट्रक्चर वाइज दे आर बाइकॉन्केव. अब बाइकॉन्केव क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. ये आपकी कॉन्केवनेस हो गया दिस साइड एंड ये अगेन एक कॉन्केव हो गया. तो ये डिस्क शेप्ड को होते हैं और इनर कॉन्केव होते हैं. तो दो साइड हो गया, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हो गया बाइकॉन्केव. और ये बाइकॉन्केव की एडिशनल बेनिफिट भी क्या है कि ये एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कराता है टू अटैच डिफरेंट सब्सटेंस. जैसे कि आपको पता है कि आरबीसी में ऑक्सीजन कैरी होता है, तो वो जो सारी चीज होती है वो यहाँ पे आप एडिशनल स्पेस प्रोवाइड हो रहा है जहां आपकी सब्सटेंस आके यहाँ पे अटैच्ड हो सके. ठीक है. एंड जैसे कि मैंने बोला आपको हीमोग्लोबिन का भी दो पार्ट है. दो पार्ट मतलब जैसे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है. तो दो डिफरेंट सब्सटेंस क्या है, उसमें एक हेम ग्रुप है. हेम ग्रुप जो है आयरन रिच ग्रुप, वो है रिलेटेड टू हेम ग्रुप. एंड ग्लोबिन, अभी मैंने आपको बताया था ग्लोबिन इज ए प्रोटीन. ग्लोबिन इज ए प्रोटीन. अब ये आता है दिमाग में कि सर तो आरबीसी तो मर जाता है, राइट. आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब तो मर जाते हैं ना स्पेसिफिक, तो डिवीजन नहीं करते, सेल डिवीजन आपको पता होना चाहिए. तो ये जब आरबीसी डेथ होता है, आरबीसी डेथ कहां पे होता है आपको एक बताना चाहिए. फॉर्मेशन कहां पे होता है पहले चलते हैं. आरबीसी की फॉर्मेशन जो मैंने बोला था आपको, आरबीसी की फॉर्मेशन आपकी रेड ब्लड सेल जो होती है वो बोन मैरो से होती है. कहां से होती है, बोन मैरो से. और बोन मैरो में फॉर्मेशन हो जाने के बाद अराउंड 120 डेज की लाइफ स्पैन खत्म करके 120 डेज की लाइफ स्पैन खत्म करके वो डेथ हो जाती है, उसकी सेलुलर डेथ हो जाती है. और वो डेथ कहां पे होती है, स्प्लीन में होती है. कहां पे होती है डेथ, याद रखना, स्प्लीन में होती है. इसलिए स्प्लीन को हम अदरवाइज भी क्या बोलते हैं, स्प्लीन को हम अदरवाइज बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ठीक है, स्मशान बोलते हैं उसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. किसको बोलते हैं, स्प्लीन को. तो जब आरबीसी की डेथ होती है उसमें जो दो पार्ट था, आयरन पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट, ये प्रोटीन पार्ट ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड व्हिच इज यूज्ड बाय आवर बॉडी. बॉडी से वो अमीनो एसिड्स इसको फिर रिट्राइव कर लेते हैं. ठीक है, फॉर फर्दर रीयूज पर्पस के लिए. तो ये था आपकी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आरबीसी. ओके. एंड एडिशनल एक चीज भी आप अब ये बोल सकते हो कि जो आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या फॉर्म कर देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड यहाँ पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. Carbamino hemoglobin and oxyhemoglobin. This is a substance which is formed by the addition of oxygen and carbon dioxide. Okay. Now we'll be discussing about the WBC. Okay. तो WBC white blood cells, white, तो उसको अदरवाइज बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट जो आया हुआ है वो ल्यूकोस से आया हुआ है. ल्यूकोस इन द सेंस व्हाइट. ठीक है. एंड और एक चीज है, मैंने आपको आरबीसी के बारे में और एक चीज भी बताना चाहूंगा. यहाँ पे आरबीसी जो होती है, आरबीसी में जो न्यूक्लियस है वो ई न्यूक्लिएटेड. आरबीसी की जो न्यूक्लियस था वो यून्यूक्लिएटेड था, ई न्यूक्लिएटेड. अब यून्यूक्लिएटेड क्या है, उसमें न्यूक्लियेट प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है. उसमें और क्या प्रेजेंट नहीं होते, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होते. उसपे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होते. दैट मींस उसकी अपनी एनर्जी नहीं होती. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एनर्जी बैंक जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास नहीं है. और आपको ये भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उस पे एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं हो सकता, राइट. तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
तो उस पे कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन देखा जाएगा बच्चों? बहुत इजी होगा, तो उस पे एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। गेट इट? सो और एक चीज मैंने आपको बोला यहाँ पे कि उसकी जो सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होते एक्सेप्शनली जब आपकी बॉडी फीटस स्टेज पे होती है, फोइटस स्टेज में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज जहां पे आपकी बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उस टाइम पे स्पेसिफिकली आपकी बॉडी न्यूक्लिएटेड होती है। बाकी अपार्ट फ्रॉम ऑल द टाइम आपकी बॉडी की आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, नाउ अभी हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोला गया था? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोस मींस व्हाइट, ये न्यूक्लिएटेड होता है और उसकी लाइफ स्पैन की बात किया जाए तो बच्चों यहाँ पे 2 वीक्स वेरी कर सकता है, किसी किसी में फ्यू आवर भी जिंदा रहते हैं, कभी-कभी 2 हफ्ते तक भी जिंदा रह सकते हैं। और ये पाया जाता है कहां पे? लिम्फेटिक नोड्स में, रेड बोन मैरो में, स्प्लीन में भी कभी-कभी फॉर्मेशन होती है, लिवर में, तो दैट इसलिए मैंने यहां पे लिखा है बोर्न एंड डाई। दे बोर्न इन स्प्लीन एंड लिवर एंड दे आल्सो डाई इन स्प्लीन एंड लिवर। ओके, एंड द टाइप्स ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें मैंने आपको बोला लोब्स, लोब्स मतलब लेयर्स होती हैं, फ्यू ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होती है, तो उस बेसिस पे हमने उसको ग्रैन्युलोसाइट्स का नामकरण किया हुआ है। तो जिसकी टाइप्स 3 थे, बेसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, सॉरी बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो जो बेसोफिल्स थे वो इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेशन की तरह काम करते हैं। बॉडी में जो इचिंग या फिर रेडनेस आ जाती है वो इन्फ्लामेशन रिलेटेड चीज जो होती है वो ये काम बेसोफिल्स देखते हैं कि एंटी इन्फ्लामेशन एजेंट की तरह काम करते हैं। एंड इसिनोफिल्स जो है वो एंटी एलर्जिक सब्सटेंस की तरह काम करते हैं, जो कि एलर्जी से हमको हेल्प करते हैं समहाउ, तो एलर्जी नहीं होने देते हैं हमको। दैट मींस इसलिए भी लिखा है कि एलर्जिक रिएक्शन रिलेटेड होगा तो वो होगा इसिनोफिल्स। एंड न्यूट्रोफिल्स जो है वो फैगोसाइटिक होता है। फैगोसाइटिक क्या है? 2 चीज यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है सेल ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस है सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये जो फैगोसाइटिक मतलब फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो आउटसाइड नॉन सेल्फ सेल्स होते हैं, जो बाहर की सराउंडिंग्स है, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो गया, तो उसको ये फैगोसाइटिकली एनगल्फ कर जाएगा एंड हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें कोई भी लोब प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसकी 2 कैटेगरी होती है, एक लिम्फोसाइट्स और एक है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स किलर सेल्स के होते हैं, उसमें जो आपके फॉरेन सेल्स को आइडेंटिफाई करके उसको किल करने में हेल्प करती है। लिम्फोसाइट्स जो कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम की भी एक पार्ट है, ठीक है, एंड मोनोसाइट एज लाइक योर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स आर आल्सो phagocytic in nature. ठीक है, this is all about your WBC. And lastly we'll be discussing about platelets. So platelets जो होती है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोस मतलब क्लॉट, तो जब ब्लड क्लॉटिंग की बात आती है तो वहां पे थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स होती हैं, जिसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन के जो है, विटामिन के इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग व्हिच इज एडिशनली हमारी बॉडी में अगर अवेलेबल है सही अमाउंट में तो हमारी बॉडी में ब्लड बहुत जल्दी फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं प्लेटलेट्स, ये भी समा व्हाइट कलर के होते हैं एंड ओवल होते हैं, स्ट्रक्चर उनकी ओवल टाइप के होते हैं, राउंड होती है एंड बाइकन्वेक्स होती है। बाइकन्वेक्स जैसे आरबीसी की स्ट्रक्चर ऐसे था तो यहाँ पे इसकी बाइकन्वेक्स होगा, तो 2 साइड उसके वेक्स होगा, ये साइड भी वेक्स होगा, इस साइड भी वेक्स होगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर हो गया बाइकन्वेक्स इन नेचर, द प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने ब्लड की कंपोजिशन, उसके फंक्शंस और उसकी स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोजिशन को हमने आज रिवाइज किया। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास probably we'll be discussing about the types of circulatory system and heart and the additional few questions, okay, and additional few topics related to circulatory system. Okay, thank you so much, have a great day.